Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the first session of the basics of Photoshop and poster designing. We are glad to have you all on board in such large numbers. This workshop is an initiative of SPY MedTech at AKU, and it aims to provide you all with a foundational understanding of poster designing, which will help you as you explore your interest in it in the future. The lessons taught in this course are aimed towards beginners, so even if you've never designed a poster yourself before, then this is the perfect place for you to start. And if you already have some prior experience, then we assure you that you'll explore Photoshop and Canva in the depths that you never knew. For today's session, we are pleased to have Mr. Manzar Abbas with us. Manzar is a fourth-year medical student at Aga Khan University. His interests include programming, web developing, data analysis, and photography. He loves to spend his free time learning new things and mastering his skills to maintain his wide variety of skill set. An interest in technology gives him an edge on doing something great for an amalgam of medicine and artificial intelligence. Since this is the first session, we will be starting off with a short introduction to Photoshop and Canva. This will be followed by getting familiar with the interface of both the softwares. This will include exploring different features, different tools of Photoshop and Canva, as well as learning how to customize the interface of the two softwares. Since we want this session to be interactive, so please feel free to drop down your questions at any time during the session. Thank you. Over to you, Manzar. Thank you, Rohan. Hello, everyone. This is Manzar Abbas. So we'll be starting with the Photoshop and Canva very soon. First of all, you all must have been going through the all four objectives of the sessions, like all four sessions objectives. Sorry. So today we'll just cover the Canva interface of Canva and the interface of Photoshop. So wait a second. Okay. So for those who are not able to download Photoshop and Photoshop properly on their devices, we'll be covering a tutorial, a very short tutorial basically in the end of the session. So right now we'll start with the methods and procedures, and in the end, if we have time, we can go through the step-by-step approach on how to properly download and install Photoshop. Okay, so now you can write the steps on your paper or on your devices, and you can follow that after you install these softwares. And for those who have successfully installed the software, you can do it right away along with me. Okay, is everything all right till here? If you have any queries, you can use the chat box. Okay, ठीक है. सही so. First we'll be like exploring Canva, and then we'll explore Photoshop. Is that okay? Share screen one. Okay. So when you go to the canva.com, which is the official website of Canva, so you will see something like this, and you might have to like join with your email ID. So personally, I prefer if you have any institutional ID, just like I have my institutional ID here, so you can use that. इसके फायदे थोड़े से मैं बता देता हूँ. इसमें you can have your own personal class in which you can share your data, share your posters in a systematic way, rather than just sharing the link with everyone who have the access can edit your photographs and your posters. So when you sign up for your departmental email ID, so you will have options for two, like you can use it for personal use and you can have your class. Class में you have option for sharing, make different क्या कहते हैं उसे groups बना सकते हैं. You can invite specific members and give them a restricted क्या कहते हैं access to your posters.
Another approach for that is कि आप कोई design बनाओ and उसका share link कर दो, link share कर दो to everyone who has access to Canva can edit the photos, which is not a very healthy way of like sharing the data. अच्छा, so let's move on to the interface. अच्छा, इसमें यहाँ पे interface से पहले we have certain options. We can use templates for whatever reason you are going to make your poster. You will find certain templates here. So you can have Instagram stories, Facebook posts, cards, invitations, presentations, flyers, posters, education worksheets, certificates. हो सकता है आप लोगों के सर्टिफिकेट्स भी यहीं से डिजाइन हो, तो देयर आर सर्टेन specific चीजें यहाँ पे. You can choose whatever you want. So for marketing purposes, we usually use posters and flyers. For research purposes, we use infographics, and for marketing purposes, we also use brochures and newsletters. So let's get to the posters templates and we'll see how much liberty do we have. तो यहाँ पे latest posters available होते हैं, usually free and pro. You can filter these out. इनका pro feature is something you should try if you have the capacity to try. Well, I'm not using it, so you can just filter these out to the free section. And free, maybe they have pretty good looking posters. इनको you just have to modify them. तो इनमें से let's choose. ये काफी सारे आप लोगों ने देखे हुए होंगे. मैंने तो देखे हुए क्योंकि मैंने इनमें से काफी यूज भी किए हैं. आई हैव यूज्ड दिस वन, आई हैव यूज्ड दैट वन, एंड ये जो भी रिसेंट्स हैं. बाकी पुराने स्क्रॉल करते रहोगे तो आई हैव यूज्ड दिस वन एज वेल. ये वाला भी यूज किया था, ये भी यूज किया था. तो मैं काफी सारे इनके नए नए यूज करते रहता हूँ. तो इनमें से आई थिंक लास्ट मैंने ये यूज किया था, बट ये अभी नए नए आए हैं इनके, तो दीज आर फ्रेश वंस. लेट्स गो टू हियर. यहाँ पे इनका ऑप्शन आ रहा है कि these are certain conditions. These are the dimensions of the poster. Let's customize it. It is free standard shipping, so it will open something like this. So before going to the all these elements, so यहाँ पे जो मैंने बताया है कि हम अपने institutional ID से login कर सकते हैं. So we'll have two options here, personal or class. Class में there is a whole bunch of things. I can see the things shared with me. I can see my total classwork. अगर मैंने कोई assignments बनानी है, I can share those here. I can see my trash. I can make separate classes. Like ये तो मैंने generally नाम लिख दिया, but I could have made this setting like poster workshop 1, poster workshop 2. उस तरीके से I can make different teams and I can work on that. And then from my personal account, I'll have all my data जो कि मैंने मेरा अपना है यहाँ पे मतलब. Again, I can see the shared with me. These shared will be like proper shared. But अगर कोई मेरे email पे सिर्फ email पे share करता है तो वो मेरे workspace में चला देगा. ये फायदा हो जाता है. ठीक है. We have, yes, it will be less than an hour. As less than an hour. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास इन चीज़ों को हम बाद में करेंगे. आई थिंक इसको डिज़ाइन करना would be covered in session 3. Yes, in session 3. Let's go to the elements. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये हैं, क्लिप आर्ट्स कह सकते हो इन्हें, मिनी आइकन्स कह सकते हैं. तो ये हम अगर हमने कोई पोस्टर बनाना है जिसमें हमारे पास वेन्यू और अगर टाइमलाइन बतानी है तो ये अच्छा लगता है कि अगर हम साथ ही अटैच कर दें. वी हैव डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ पिक्चर्स कि अगर हमारे पास लेट्स अज्यूम this picture is actually of this size, मतलब it's a rectangular portrait mode picture और इसको हमने स्क्वायर में कट करना है. फोटोशॉप में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि हमें वहाँ पे एक टूल्स होते हैं डिफरेंट, which we'll discuss अभी. वहाँ पे टूल्स से हम इनको क्रॉप करते हैं. बट इन कैनवा यू कैन चूज अ शेप. मैंने ये शेप चूज कर ली है. लेट्स ब्रिंग इट टू फ्रंट एंड देन आई कैन जस्ट ड्रॉप माय पिक्चर हियर. इसको पहले डिटैच करो. So this is my total picture ना. I can drop it in the
frame, वो automatically उसके हिसाब से cut कर देगी. This is very convenient feature. More about this in the next sessions. And we have all type of frames, grids, multiple. अगर आपने collage बनाना है तो वो सारे यहाँ available हैं. Then we have shapes. जैसे मतलब यहाँ पे एक shape बनी हुई है, यहाँ पे एक shape है. We can add like अभी ये वाली simple add करके देखें तो I can add a border here. तो ये थोड़ा border आ सकता है. इसको I can rotate, tilt, टेढ़ा करने टेढ़ा कर दो. There are no limits. Then there's an upload option where you can upload your data from your computer, from Google Drive, from internet, through links or anything else. I'm not going to open this right now. Then you can have your headings option. You can add text. मतलब यहाँ पे अगर हमने कुछ extra text add करना है, I can add just you can click here और यहाँ पे आ जाएगा तो I can write whatever I want. Then we have some pre-made fonts, pre-made designs. जैसे ये है तो इसमें Pro. So जहाँ पे ये इनका हेड बना हुआ है या ताज बना हुआ है, दिस इज अ प्रो. बाकी सारे फ्री हैं. आई थिंक इन्होंने सारे प्रो कर दिए. पहले मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बी फ्री. ये वाले फ्री, ठीक है. तो दिस इज फ्री, तो आई कैन जस्ट क्लिक हियर और इसको मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ. तो दिस वुड बी पोस्टर एंड वर्कशॉप, लाइक इस तरीके से. ठीक है. तो यू कैन ग्रैब एनी टेक्स्ट फ्रॉम हियर. अच्छा, बॉटम पे इन्होंने अब फ्री कर दिया, ठीक है. And then we have color palettes. Where are those? Color palettes होते तो नहीं. Yep. तो when you are making something from scratch basically, तो उसमें आप यहाँ से color pattern उठा सकते हो कि ये colors choose होंगे. There is a concept called contrasting colors. वो I think कल discuss होंगे. तो you have to have a certain type of contrast. मतलब ये भी नहीं कि black के ऊपर white डाल दो, blue के ऊपर red डाल दो. There is a certain palette of colors जो कि आप यूज करते हो for certain amount of for certain designing basically. जैसे इन्होंने ऑरेंज, पिंक, हल्का सा वाइट और हल्के से क्रीम कलर यूज किया हुआ है. येलो को हटा दो और उसके ऊपर उन्होंने ब्लैक के टेक्स्ट यूज किए हैं. तो दिस इज अ होल कलर पैलेट इनका. अगर मैं इनके इधर जाऊं तो ये सारे कलर्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. वी हैव दिस कलर, वी हैव दिस कलर, ये कलर है, ये कलर है. ठीक है. तो हम यहाँ से कोई एक अच्छा सा पैटर्न चूज करके एंड देन उसके हिसाब से पूरा मॉडिफाई हो जाएगा. इसी पे अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो कलर्स को आपस में शफल कर देगा. यहाँ पे शफल का बटन आ रहा है. तो whichever is like suits you best here, you just grab it right away. Then you can add your personal colors, you can add your font, you can change the font. इसको इससे चेंज कर दो तो ये पूरा चेंज हो जाएगा. Anything for here? Any questions? क्योंकि कैनवा बहुत सिंपल है, इतना सही है. और इसके बाद we'll move to Photoshop. पर्सनल कलर्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है हैश हेक्स कोड्स. आप कोई भी कलर है उसका हेक्स कोड निकाल सकते हैं. वो हेक्स कोड निकालना आई टॉक अबाउट इन द सेशन 4 इंशाल्लाह. वो शायद थोड़ा सा लंबा भी हो जाए. तो वो जस्ट यहाँ पे जो भी जहाँ भी कलर ऐड करना है, लेट्स से मैंने इस बैकग्राउंड का कलर ऐड करना है, चेंज करना है सॉरी, तो यहाँ पे इसका कलर आ जाएगा. आई क्लिक ऑन दिस. तो यहाँ पे हमारे पास ऐड अ न्यू कलर आ जाएगा. तो we'll just add our favorite hash code here, hex code. Hex code को hex इसलिए कहते हैं क्योंकि it's a hexadecimal system. 16 digits होते हैं टोटल एंड देन उन्हीं के गिर्द आपका कोड या कलर पिक करना होता है. तो 6 डिजिट्स का होता है और 16 टोटल डिजिट्स यूज कर सकते हैं. तो it's called hex, that's why. 8 622831. This is our favorite color. It's a slight dark purplish maroon.
तो कुछ इस तरह से होता है। तो ये इस तरह से यू कैन ऐड योर पर्सनलाइज कलर्स स्टाइल स्टाइलिंग which styling, the font style or the background style? Yeah, elements में we covered frames and grids, text के styles यहाँ पे हैं, everything is there. Styles में we have font style, colors, everything. यहाँ पे font भी change हो जाता है direct, but अगर आपने सिर्फ colors change करने you can do it from colors option as well. जैसे मैंने इसमें choose करना है, मैंने इसमें choose करना है. I want to shuffle these. We'll talk more about this in the third session. Don't worry. ठीक है. Um, you guys can see the screen now. हाँ ठीक है. Let's move on to the Photoshop. अच्छा, for those who have installed CS6 or for those who have installed CC, तो ये हैं. इन दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है. So I'll go with the CS6 क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब सीसी में थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा हैं तो वो फिर सब में कवर नहीं होंगे. बट जो CS6 के सारे ऑप्शंस हैं वो सब के सब सीसी में भी अवेलेबल है. तो यूज CS6 for our tutorial. When you first open the like panel, it would look like something like this. यहाँ पे we are going to customize it. इसको I think ये ऐसे होगा थोड़ा बहुत. सबसे पहले आपने इसका इंटरफेस जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है. तो सबसे पहले वी हैव दिस लाइन ऑफ टूल्स. यहाँ पे हम अपने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं. हमारे पास सिलेक्शन टूल है, व्यू टूल है. ये इनके बारे में भी मैं बताता हूँ. तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस बटन पे क्लिक करें तो ये थोड़ा सा इसे वाइड करके एक एक जगह पे ले आता है. अदरवाइज ये बहुत लंबे हो जाते हैं. आई प्रीफर इट दिस वे. सो वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन गो फॉर योर फेवरेट चॉइस. इस साइड पे वी हैव दीज थिंग्स. यहाँ पे एक कलर पैनल है. हम अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हैं. स्वॉचेस हैं डिफरेंट कलर्स के. ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये थोड़े से एडवांस्ड उसमें यूज़ होते हैं फोटोग्राफी में, कि जब आपने कोई आप चीज़ शेयर कर रहे होते हो किसी के साथ, अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है, तो वहाँ पे यू ऑल्सो शेयर द कलर के पैलेट्स या प्लेट्स जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किए थे ना, ये वाले. दीज आर कलर स्वॉचेस बेसिकली. तो वो आपको यहाँ से शेयर करने पड़ते हैं. देन देयर इज एन एडजस्टमेंट लेयर्स. इसको अभी हम करते हैं. लेयर्स का ऑप्शन है. लेयर्स आर बेसिकली, चलो लेयर्स विल बी कवर नेक्स्ट सेशन. यस, डोंट वरी अबाउट लेयर्स. अभी हम सिर्फ स्टाइलिंग की बात करते हैं. सो विल गो टू विंडो, क्योंकि ये जो हमें नजर आ रहा है दिस इज अ विंडो. तो हम विंडो में जाते हैं. देन विल चेंज द वर्क स्पेस. वी हैव द इसेंशियल्स. ठीक है, डिफॉल्ट है. एंड देन वी कैन ऐड ऑल दीज ऑप्शंस. इनमें से मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट्स डाली हुई हैं. सो यू कैन सी द एडजस्टमेंट्स हियर. आई हैव एडिड layers you can see here. I have color added swatches and styles. So swatches, styles यहाँ पे हैं. You can add navigator, notes, paragraph, whichever is convenient for you. You can try everything. Notes add कर दो तो यहाँ पे notes आ जाएंगे. तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो साथ यू कैन टाइप आउट कि मैंने ये चीज़ एडिट की थी, ये चीज़ मैंने चेंज की थी. मैंने इन लेयर्स को ये सोच के बनाया, इन ग्रुप्स को इस तरह से अलाइन किया. तो यू कैन ऐड notes as well. Usually I don't use notes, so I'll turn it off. And we have other options like properties, paths, timeline, tool options or tools. You can all try with these options. ठीक है. यहाँ पे एक हिस्ट्री है मेरे पास. लेयर कैम्प्स है और ये नोट्स यहाँ पे छा गए. ठीक है. You can remove them from like grab them here and drop it here. तो यहाँ पे आ जाएगा. ये वाली जगह आपके पास खाली आ जाएगी. You can also go back इसी से ग्रैब करके और इसे यहाँ ले जाओ. ठीक है. अगर मैंने खाली इसे डिटैच करना है. ओके, ये क्यों नहीं हो रहा अटैच? चलो जी, वापस आ जाओ. क्या क्या थे? लेयर्स थी,
I have essentials. एक और चीज थी ना, टूल्स। अच्छा ये खुद ही आ गया, ये साइट पे क्यों नहीं जा रहा? चलो अभी इसको एक इस साइड पे रखते हैं। हाँ हो गया। लेट्स गो बैक। ठीक है, इस तरीके से हमें नजर आ रहा था पहले। ठीक है। um, सही है। नेक्स्ट ये अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है ये बेशक तुम लोग लिख लो अपने पास, क्योंकि जिन लोगों के पास नहीं है अभी फोटोशॉप, उन लोगों को ये काम करना पड़ेगा लाजमी। मैं फोटोशॉप में एडिट ऑन दैट। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी डोंट वरी। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, we'll go to edit. Then we have bottom pay preferences. We'll change two things from here. One is general preferences and other is camera raw preferences. Let's go to general first. ठीक है, जनरल में वी हैव जनरल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आई थिंक ये सारा डिफॉल्ट रहने देते हैं। जो चीज़ हमें चेंज करनी है वो है परफॉर्मेंस। अच्छा, मोस्ट ऑफ यू वुड बी यूजिंग लैपटॉप्स। लैपटॉप्स में इतनी मेमोरी नहीं होती कि मतलब आप सब चीजें इक्वली वो करो। सो यू हैव टू लाइक फोर्स योर लैपटॉप टू डू इट मैक्सिमम फॉर फोटोशॉप। आप लोगों का कर्सर यहाँ कहीं मिड में होगा और यहाँ कहीं पे 2000 के करीब की वैल्यू होगी अगर आपका 4 GB का लैपटॉप है। अगर 8 GB रैम है तो फिर आपको कहीं 4000 के आसपास ही वैल्यू होगी। आई एम यूजिंग 16 GB रैम, सो इसलिए मेरा ये है, बट आई इंक्रीज इट टू लाइक 100%। आई वॉन्ट 100% ऑफ द अवेलेबल रैम टू बी यूज, लेट्स अज्यूम। बट 100% बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट जो लोग 4 GB यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उन लोगों का 100% लाजमी होना चाहिए, वरना बहुत मसले होते हैं। फॉर दोज हु आर यूजिंग 8 GB रैम, दे कैन easily go to 8 or 7 GB, 8 GB तक वो लोग जा सकते हैं। I'll keep it to 60 for myself. Like 6 GB is a good enough number for like Photoshop. It's not that heavy. Then there's a scratch disk space. यहाँ पे आपकी मतलब स्क्रैच आपका कैश डाटा होता है, तो वो सारा वो ऐसी जगह पे स्टोर होना चाहिए जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस हो। लेट्स से यहाँ पे अगर मेरे पास 110 GB के बजाय जस्ट 1 GB होता, आई वुड प्रीफर कि मैं या तो डी सिलेक्ट करूँ या ई सिलेक्ट करूँ, बाकी दोनों को अनसिलेक्ट कर दूँ। तो बट आई हैव इनफ स्पेस ऑन माई सी ड्राइव, तो मैं सी को सिलेक्ट कर लूँगा। So you have to choose something that has some space. ठीक है। Next we'll go to um, हाँ, interface. Interface, if like I hope someone of you are using Photoshop from earlier as well. ये देख के कुछ याद आ रहा है, या ये देख के कोई उसमें लिखे चैट बॉक्स में किसी ने यूज किया है इस तरह का कुछ इंटरफेस? ये कुछ देखा देखा लग रहा है कोई भी? Like this is giving me some nostalgia. I hope someone else must be having it. Windows XP version, Paint. वेल पेंट तो नहीं है इस तरह से, बट हाँ जो विंडोज एक्सपी वर्जन है दैट वाज बेसिकली CS4 या CS3, उनके इस तरह के लेआउट होते थे, मतलब इस ये कलर होते थे। तो CS5 और CS6, जो अब CS6 के बाद उन्होंने बनाना बंद कर दिया था CX वर्जन, अब CC वर्जन मिल जाता है। बट CS5 और CX6 में फिर उन्होंने ये ब्लैक लेके आ गए थे। Oops, ये रहा। तो ये वाले कलर्स होते थे डिफॉल्ट में, बट आई प्रीफर इट मोर डार्क, तो फिर मैंने ये वाला चूज किया। आई थिंक दिस वन इज द डिफॉल्ट वन, बट आई लाइक इट दिस वे। लेकिन हाँ, ये दीज कलर्स वर यूज इन ओल्डर वर्जन्स, या एज समवन सेड के विंडोज वर्जन, विंडोज एक्सपी वर्जन।
उनमें यूज होते थे ये कलर्स. गुड, दैट्स गुड. I'm amazed you guys know this. We have cursors. हम यहाँ पे cursors change कर सकते हैं. Like यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि this is standard normal brush tool. इसमें हम precise करके इस तरह कर सकते हैं. We have a standard one. लेकिन इन तीनों में से सबसे अच्छा normal brush है. But sometimes when you are using precise location, brush में बहुत कम use करते हो आप. जो कलर पिकर है उसमें आप प्रिसाइज यूज करना प्रेफर करोगे, तो आई वुड से कि इसको प्रिसाइज कर लो एंड देन इसको नॉर्मल ब्रश टूल रहने दो. कलर तो जैसा आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा नजर आएगा, तो वो यहाँ पे है. ट्रांसपेरेंसी में वी डोंट नीड एनीथिंग. नो चांस. पेंट याद आ रहा है लोग. बाकी आई डोंट थिंक वी नीड चेंज एनीथिंग, राइट? ठीक. And if something goes wrong, you can always reset all warning dialogs. या इस पूरे को ही रीसेट कर सकते हो. यहाँ पे एक चीज थी. यप. सो फाइल हैंडलिंग में, या चलो एक मिनट इसे ओके कर दो. सेव द सेटिंग्स हियर. देन विल गो टू द सेकंड चीज जो हमने चेंज करनी थी. व्हाट्स द टाइम? 8:29. ठीक है. सो अभी हमने जनरल वाली चीजें चेंज की हैं एंड देन विल गो टू कैमरा रॉ. कैमरा रॉ उन्होंने आई थिंक लेटेस्ट CS6 में ही डाला था. उससे पहले कैमरा रॉ अवेलेबल नहीं होता था. इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट हमें JPEG और TFF की फाइल हैंडलिंग चेंज करनी है. तो इसमें अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन चूज किया होगा बाय डिफॉल्ट. यहाँ से थर्ड ऑप्शन चूज करना है फॉर JPEG एंड फॉर TIFF हमने इसके लिए भी थर्ड ऑप्शन चूज करना है. ऑटोमेटिकली ओपन ऑल सपोर्टेड फाइल्स जो भी हमारे पास JPEG है या TIFF है. तो ये दो सेटिंग्स हमने यहाँ से चेंज करनी है और बाकी हमने जनरल ओवरऑल चेंज कर दिया. नाउ वी हैव आवर वर्कस्पेस रेडी. दिस इज आवर वर्कस्पेस और विंडोज स्पेस. जैसे मैंने बताया आई डोंट वांट इट दिस वे, तो मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो ये साइड बाय साइड हो जाएंगे. लेट्स गो टू द टूल्स वेरी क्विकली. Why don't we open today's poster and play with it? कहाँ पे होगा? Wait a second. Download. Stop. So we'll go to new or open, whichever is convenient. तो हम open पे जाते हैं and we'll open this workshop poster. अच्छा, वो जो हमने इमेज में जाके एडिट में जाके प्रेफरेंसेस से कैमरा रॉ चेंज किया था ना, उसका फायदा ये है कि फिर हमें कैमरा रॉ इस तरह से खोल के आता है, कैमरा रॉ 7.0, और वो हमें एक अलग से विंडो दे देगा. दिस विंडो इज ऑल्टरनेटिव ऑफ एडोबी लाइटरूम. लाइटरूम वो होता है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स के कलर्स सेट करते हैं. देयर आर सर्टेन टाइम्स जब मैंने सिर्फ इसके ऊपर अपने सारी एडिटिंग्स की, ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे करने से, एंड देन थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से इसका ल्यूमिनेंस चेंज किया और उसी को वहीं पे सेव कर लिया, क्योंकि मुझे फोटोशॉप की कोई और फीचर नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ कैमरा रॉ फीचर चाहिए था जो मैंने यहाँ से यूज़ किया. एंड देन इसके जो ये वाला है कहाँ गया, कर्व्स. यू कैन प्ले विद द कर्व्स. RBG कर्व्स होती हैं इनकी. विल डिस्कस दीज होपफुली इन द सेशन 2. एंड या मतलब अच्छा खासा काम यहाँ से हो जाता है. तो ये फीचर था कैमरा रॉ हमने जो अभी लास्ट सेटिंग चेंज की है. I think Kantesh would elaborate more on these options. So we'll just open image. तो ये हमारे पास इमेज आ गई है. It has only one layer. Layer is something कैसे बताऊँ, मतलब each component of the poster has its own layer. मतलब आप अगर इस पोर्शन को चेंज करना है तो सिर्फ इसी लेयर को चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. अगर आपने जस्ट यहाँ से इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो इस टेक्स्ट की अपनी एक लेयर होगी. ये पीछे जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड की अपनी एक लेयर होगी. इसका फायदा ये होता है कि जब आप निटी ग्रिटी एडिट्स कर रहे होते हो तो फिर आपको उन लेयर्स में जाके चेंज कर दो, देन दिस विल नॉट अफेक्ट द होल पोस्टर. layers के लिए I think I'll have to open another poster basically.
You can always play with these things. ठीक. Then you can. Let me find another example जहाँ से मैं layers वाला उठा सकूँ. Just give me a minute. I'll pause sharing. Hmm. Okay, I found something. Give me a minute, 8 minutes. Okay. Um, can you guys see the screen now? I hope it will be visible. Camera raw preferences ठीक है. मतलब जैसे ही कोई इमेज ओपन करोगे, यू गो टू फाइल, ओपन एन इमेज, तो यहाँ से लेट्स से मैंने ये एक पोस्टर उठा लिया, तो ये मुझे कैमरा रॉ में ओपन करेगा. आई चेंज दैट फ्रॉम, ये वन टाइम चेंज करना होता है, प्रेफरेंस, गो टू कैमरा रॉ एंड देन चूज द थर्ड ऑप्शन. समटाइम्स इट डजंट वर्क, जैसे अभी लास्ट लास्ट अकरेंस में इसने काम नहीं किया. तो आई कैन ऑलवेज लाइक इसको छोटा करके आई कैन ग्रैब इट फ्रॉम हियर, ये मेरा वो है, एंड देन एक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ ऊपर ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे देखो ना, चेंज हो रहा है दोनों में. वी हैव टू ड्रॉप इट हियर ऊपर, तो ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन कर देगा. आई हैव समथिंग ऑन माई सेकेंड स्क्रीन एज वेल. तो अगर मैं यहाँ से इसे ग्रैब करके लाऊं इसी चीज़ को और यहाँ ऊपर ड्रॉप कर दूँ, तो आई डोंट नो, इस पोस्टर के साथ भी इसकी लड़ाई है, इसको नहीं ओपन कर रहा वो. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. तो आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है इसके अंदर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट ओपन्स इट इन, क्या कहते हैं उसे, अलग से कैमरा रॉ के अंदर. So we'll go through this poster and see how can we see the layers. थर्ड ऑप्शन से ये है कि कैमरा रॉ ओपन हो जाता है, विच इज योर बेसिकली लाइट रूम. लाइट रूम में यू कैन एडिट द lightnings of your photograph, basically the exposure, color, highlights, blacks, whites, all these things. These will be covered in session 2, don't worry. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव आवर इमेज. अगर मैं इसको ऑफ करूँ, लेयर्स को यू कैन इंडिविजुअली टर्न दिस ऑन एंड ऑफ. ऑल दीज आर लेयर, लेयर 1, लेयर 2, 3, 4, sorry, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. We have 13 layers, don't worry. हर एक कंपोनेंट का अलग अलग हमारे पास लेयर है. So we have this, first of all, thanks for SIG for letting me use this photograph. बाद में मसला ना करें. ये हमारे पास इमेज है, इसको लाइक वी कैन toggle it on and off, toggle on, toggle off. I have this text for timings. I can toggle it on, off, on, off. I have these styling rectangles. यहाँ पे ये छोटी सी rectangle है. And then I have logos. Logo मैंने turn off, turn on. Then I have some text. अच्छा, ये reuse किया था, तो she's not Dr. फरहान. यहाँ पे मुझे change करना चाहिए तो Dr. राबिया. इनका सारा फिर text के इनका करती क्या है ये, इनका नाम, हर हर फॉन्ट, हर लाइन, हर टेक्स्ट के लिए इट इज़ प्रीफर्ड कि आप अलग से
layer apply. Title के लिए we have this, and then we have separate छोटे-छोटे boxes, and then we have this background. Background के लिए we have अलग से एक layer. तो background remove कर देंगे तो it will look something like this. These are all about layers, I guess. Next we have tools, and we have 10 minutes before we start troubleshooting. Check layers. Check तो नहीं है यहाँ पे, आई का बटन बना हुआ है. You can click on this तो वो ऑफ हो जाएगी, click on this ऑन हो जाएगी. Let's say ये वाले ऑन करनी है तो ये ऑन हो गया, इसको ऑफ करनी है, ऑफ हो गया. एंड ठीक है, चलो we'll start from this one. ये सबसे बड़ा फेमस है, क्या नाम है इसका, इस पे hover करेंगे तो इसका नाम भी आ जाना चाहिए, मूव टूल. मूव टूल सिलेक्ट करके आई कैन चूज एनी लेयर विच आई वांट टू मूव. बेसिकली यहाँ पे एक है ऑटो सिलेक्ट, इसको आई विल प्रीफर के इसको मैं टर्न ऑफ कर दूं, अदरवाइज फजूल की चीजें ये मूव करता रहता है. आई विल चूज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेयर विच आई वांट टू मूव, एंड आई विल जस्ट ग्रैब इट और मूव कर लूंगा उसे जहाँ भी मुझे, अगर मुझे यहाँ पे ऐड करनी है तो आई कैन जस्ट मूव इट हियर. एंड आई वांट टू चेंज द लोगो पोजीशन, and every movement you have to press enter basically. लोगो पे आ गया तो I can like इसका साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसको यहाँ मूव कर सकता हूँ साइज बड़ा करके, एंड देन साइज छोटा करके, जहाँ भी फिट होता है जस्ट प्रेस एंटर. ठीक है, दिस वर्क्स फॉर ऑल टेक्स्ट, ऑल टाइप्स, ऑल इमेजेस, ऑल बैकग्राउंड्स. इमेज को मैं I can grab the image and put it here, I can put back. ठीक है, next we have 3 or 4 selection tools. Selection tools में 1 2 3 4 या 4. एक ये है. अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ बॉटम राइट पे एक एरो बना हुआ है. इफ आई राइट क्लिक, या अगर जो लैपटॉप यूज करते हैं दे कैन डबल टैप simultaneously and it will turn to more options. कि अगर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यूज करना चाह रहा हूँ, अगर मैं एलिप्टिकल यूज कर रहा हूँ, सिंगल रैव है, अगर सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, I can use any of these. Usually I haven't used last two, but first two मैं usually ज़्यादा use करता हूँ. So in this example, let's say if I want to just grab this logo, तो मैं इसको यहाँ करूँगा and then it will select हो जाएगा मेरा. And this selection I can move it anywhere, like यहाँ से कर लो. इसके पीछे जो चीज़ है वो नहीं आएगी, उसको चूज करने का अलग तरीका है. Basically you have to press Ctrl C और सारी चीजें, वो I think next उसमें जाएगा. I think people have joined late. Layers are basically all the text, all the pictures, all the images, all the fonts in a separate क्या कहेंगे उसे, separate dimension that you can alter independently. मतलब इसके अंदर we don't have any layers ना, तो I can't edit this poster वाली line just. मतलब उसके तरीके हैं, we'll discuss this in session 4, but अभी I don't have any layers. मतलब एक ही layer है, उसी पे सब कुछ है. तो अगर मुझे just poster के अगर let's say यहाँ spelling different है, मुझे spelling change करना है, I can't do it here. I can do it here. यहाँ पे मेरे पास surgical exploration से अगर spelling mistakes है तो मैं यहाँ change कर सकता हूँ. I can't do it here. इसकी don't worry about the details. These will be covered in session 2 and 4 basically. So just hang in there. Yeah, this was one selection tool. Then we have क्या नाम है इसका, Lasso tool for a quick selection next में. Lasso tool is your के independently आपने, मतलब अभी जो मैंने last वाला choose किया था तो वो एक scare tool था ना, sorry ये, तो ये scare में चीजें वो कर रहा था. अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए scare में कर देगा, but if I want कि सिर्फ मुझे इतना सा portion चाहिए independently मैं उसको select कर सकूँ, I have to use this tool. इसमें भी there is a 3 types of tools, lasso, polygonal, magnetic. उनकी details फिर I think are beyond the scope of this session, तो वो हम कल बाद में discuss करेंगे. But let's discuss the lasso tool first. तो जहाँ भी जो भी एरिया सिलेक्ट करना है उसके लाइक क्लिक करके एंड देन यू जस्ट उसको वहाँ मूव करो, एंड देन जैसे ही क्लिक छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा.
आई कैन प्रेस कंट्रोल एक्स, तो वो सारा रिमूव हो गया है। कंट्रोल जी करके वापस ले आओ। कंट्रोल करके अगर मैं इसे ग्रैब करूंगा तो या मैं इसे कहीं मूव भी कर सकता हूँ। लाइक कंट्रोल बटन प्रेस करो एंड देन जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको अपने माउस से या कीपैड ट्रैक पैड से आप मूव कर सकते हो। तो ये मैं वापस रख दूंगा यहाँ पे। सही में कर लिया। ठीक है, ये वापस आ गया। देन वी हैव क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें ये है कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक, अब यहाँ पे ना मेरे पास कोई स्केयर चीज़ हमें चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हम एआई बेस्ड थोड़ा सा करें। एआई बेस्ड वैसे जो ये वाला था सीसी उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, बट लेट्स से मैंने ये लोगो सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा जूम करूँगा मैं एंड देन मुझे ये पोर्शन सिलेक्ट करना है। तो आई जस्ट क्लिक हियर और ये ऑटोमेटिकली जहाँ भी इसके बॉर्डर्स होंगे उन बॉर्डर्स के साथ साथ इसे सिलेक्ट कर लेगा। अभी इसका साइज थोड़ा बड़ा है मेरे इस जो यहाँ पे नजर आ रहा है गोल गोल, इसको मैं यहाँ जाके साइज भी छोटा कर सकता हूँ। 26 कर लिया। आई कैन चूज दिस वाइट स्पेस एज वेल। तो मैंने एक दफा क्लिक किया, इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया। इसका फायदा ये है कि आई कैन लाइक सिलेक्ट ओनली दिस पोर्शन जो मेरे काम का है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ तो आई कैन सी दिस पोर्शन हियर। ठीक है। ओ, कंट्रोल शिफ्ट सी। Let's open it again. Step backward is Alt Control Z. Yeah, ठीक है। थोड़ा सा मसला हो गया था, जो असल में क्रॉप नहीं करना था वो क्रॉप हो गया। ठीक है, वी आर बैक। ठीक है, दिस वाज आवर क्विक सिलेक्शन टूल। Then we have a magic selection tool as well, magic wand tool basically for Harry Potter lovers. Next we have dropper, जिससे हम कोई भी किसी भी चीज़ का कलर चूज कर सकते हैं। तो इफ यू लुक फॉर दिस कलर, अगर मुझे चाहिए ये कलर कौन सा है, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे ये चेंज होता रहेगा। अगर मैं व्हाइट पे लेके आके क्लिक किया तो व्हाइट हो जाएगा, अगर ये कर लिया तो ये इस तरह से हो जाएगा। दिस विल हेल्प मी जहाँ पे मुझे मल्टीपल पेंट्स डालने हैं, कुछ क्या कहते हैं, मुझे कोई कलर फिल करना है इसके अंदर। लेट्स से मुझे येलो फिल करना है इसके अंदर, तो मैं जाऊंगा यहाँ से फिल टूल यूज करूंगा, यहाँ फिल कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी निटी ग्रिटी एडिट्स करनी पड़ती हैं, थोड़ा जूम करके ज्यादा। तो ये मैं जहां जहां पेस्ट कर रहा हूँ वो सारा सारा येलो हो रहा है। आई थिंक दिस इज लुकिंग बेटर। तो इस तरीके से आई कैन लाइक सर्टेन बाउंड्रीज जो हमारी हैं जिस भी शेप की, उसके अंदर से हम यहाँ पे उसका कलर चूज करके वहां से मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ साथ फिल टूल मैंने बता दिया कि जहाँ भी हमारे फिल कर सकते हैं उसमें हम यहाँ फिल कर देंगे, एवरी ऑल्टरनेट में अगर हमें फिल करना चाह रहे हैं। ओह इंटरेस्टिंग, लाइक बैठे बैठे हमने इतना मजेदार पोस्ट एडिट कर दिया। अच्छा, देन वी हैव ब्रश टूल। ब्रश में ये है कि हमने कुछ ऑब्वियसली ब्रश करना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने इसको किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ब्रश टूल ही यूज किया होगा तभी इस तरह बना है। या अगर मुझे कोई चीज़ रिमूव करनी है, लेट्स से आई डोंट वांट दिस एरोज, तो मैं कलर चूज करूंगा जो बिल्कुल एरोज के साथ वाला है, लाइक ये वाला कलर। यहाँ पे कलर चेंज हो गया नजर आ रहा है। देन आई विल गो टू ब्रश टूल और मैं इसको जाके ब्रश कर दूंगा, तो वो एरोज टाइप हो गया। ठीक है, आई कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस ब्रश बाय हियर। साइज इतना बड़ा हो गया है, साइज छोटा हो गया है, एक बड़े साइज में बड़ा मसला होगा। एंड वी कैन यू कैन ऑल्सो चूज द हार्डनेस बेसिकली। अभी मेरी 100% हार्डनेस है कि जितना मैं अगर एक दफ़ा क्लिक करूंगा तो उतना पूरा पोर्शन उस कलर में इमर्स हो जाएगा। लेट्स अज्यूम कि मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, आई वांट ओनली 26% हार्डनेस।
तो ये देखो कैसे एक बड़ा प्यारा से एक डॉट आया है। किसी और कलर में लेते हैं, लेट्स चेंज द कलर टू ब्रश टूल ना, वाइट। तो ये वाइट इसने बड़ा प्यार से धब्बा डाल दिया। ये कहीं भी यूज हो सकता है, लाजमी नहीं कि सिर्फ गन बचाने के लिए यूज हो। काफी जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे हो सकता है ये अच्छा एक पैटर्न सा बना दिया आपका। देन यू कैन ऑल्सो हैव अदर ऑप्शंस। एक मैंने बड़ी मजे की चीज यहाँ देखी थी, यप दिस वन। तो ये यू कैन मेक योर लाइक पैटर्न्स लाइक दिस, यू कैन मेक अ ट्री, ये वो बना के एंड देन दिस, इसकी शाखें बना दो। तो you, like it's very fun sometimes. वापस 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 वापस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्पॉट हीलिंग टूल, राइट? यही नाम है ना इसका, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके अंदर भी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट चीजें। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स बेसिकली अगर कोई एरर छोटा मोटा हो जाता है, इसको सेशन 4 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे इफ आई वांट कि मैं यहाँ से टेक्स्ट रिमूव कर दूँ, ये मैट्रिक का टेक्स्ट मुझे रिमूव करना है, और उस रिमूव करके ऑटोमेटिकली जो पीछे बैकग्राउंड कलर है, मैंने यहाँ पे भी कलर कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड कलर से उठा के उसको चेंज कर देगा। उसने वो रिमूव भी कर दिया है। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उसने हल्का सा पिंक टिंच डाला है उसके अंदर। तो ये पिंक टिंच इसलिए आया क्योंकि उसके थोड़ा सा ही नीचे यहाँ पे पिंक, मैंने बताया ना कि इर्द गिर्द वाले कलर को वो चूज करके ऑटोमेटिकली हील करेगा। तो इर्द गिर्द वाले कलर में थोड़ा सा पिंक आ रहा था। फिर अगर मैं बहुत ऊपर ऊपर से करूँ तो अब पिंक नहीं आया। लेकिन अगर मैं पिंक लाना चाहूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा पिंक लाना चाहूँ ना, मैं जानबूझ के इसे नीचे कर दूंगा। तो वो यहाँ से खैर इसने गंदा कर दिया है, लेकिन अभी गंदा कर दिया है। दिस इज अ बिट बेटर। तो स्पॉट हील बेसिकली, कोई अगर स्पॉट है, यूजुअली इसको एक्नीज रिमूव करने के लिए, जो पिंपल्स होते हैं, एक्नी होती है, उसको रिमूव करने के लिए टूल बहुत यूज होता है। क्योंकि स्किन का कलर इस तरह होता है कि आप उसको डायरेक्टली कलर चूज करके उसको ब्रश नहीं कर सकते। ब्रश करोगे तो वो बहुत गंदा लगता है, और साफ लगता है कि आपने यहाँ पे ब्रश टूल यूज किया है। स्पॉट हीलिंग टूल उसका एक अल्टरनेटिव है, जो कि आई वोंट से एआई बेस्ड है, बट थोड़ा सा सेंसिटिव है, प्रोग्राम्ड है कि वो इर्द गिर्द के कलर्स देख के, उनके पैटर्न देख के वहां से चूज कर सकता है। स्पॉट हीलिंग टूल। फिर यहाँ पे वी हैव सम एक्स्ट्रा हिस्ट्री ब्रश टूल, मैंने कभी यूज नहीं किया। क्लोन स्टैम्प टूल मैंने कभी यूज नहीं किया। इरेजर टूल इज द वन ऑफ द टूल्स दैट यू विल यूज फेयरली कॉमनली। तो मुझे यहाँ से लेट्स से ये थोड़ा सा रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। आई कैन रिमूव द बैकग्राउंड टोटली, मतलब जहां भी मैं क्लिक करूंगा उसको पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इसमें। और लाइक इरेजर टूल में थोड़ा सा फर्क है, वो फिर जब इमेजेस पे काम करेंगे तो वहां ज्यादा समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन, कि बैकग्राउंड टूल और इरेजर टूल में थोड़ा सा फर्क है। देन वी हैव मैजिक इरेजर टूल। मैजिक एक ऊपर भी आया था ना, यहाँ वॉन्ड था, मैजिक वॉन्ड टूल, एंड हियर वी हैव मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल्स बेसिकली पिक्चर्स पे ज़्यादा काम करता है, जहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक कलर का पूरा बैकग्राउंड उड़ाना हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं पिंक पर्पल पूरा उड़ाना है, तो ये पूरे इमेज में से मोस्टली जो, मतलब ये तो सर्कल के अंदर था ऑलरेडी, जो उसके साथ साथ थी बाउंड्रीज के अंदर, वो पूरा उसने उड़ा दिया। ठीक है, लेट्स से मैंने अगर यहाँ का येलो उड़ाना है, पूरा येलो, तो मैं मैजिक इरेजर टूल पे जाऊंगा, एक क्लिक करूंगा, पूरा येलो यहाँ का उड़ जाएगा। क्योंकि ये एक बाउंड्री के अंदर क्लोज था, इसलिए ये वाला नहीं उड़ा, ये वाला नहीं उड़ा, ये वाला नहीं उड़ा। ये अच्छी बात है कि जो आपकी बाउंड्री के अंदर है ना, जैसे ये भी देखो, ये बाउंड्री के अंदर है किसी, तो ये नहीं उड़ा। तो अगर मैं इस पे, इसे भी मैंने खत्म करना है, तो इस पे भी एक छोटा सा क्लिक कर दूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो चीज़ बाउंड्रीज के अंदर होती है वो खराब नहीं होती, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड इसको फिर मैं किसी और कलर से फिल करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। हाँ, या बैक कंट्रोल, नहीं इट्स नॉट कंट्रोल, इट्स अ ऑल्ट एंड देन माय माउस का स्क्रॉल व्हील अच्छा। अब माउस सबके पास नहीं है तो हाँ हाँ हाँ, माउस नहीं है तो यू कैन लाइक पिंच आउट, ऑल्ट प्रेस करके एंड यू पिंच आउट, तो वो जूम करेगा। अगर पिंच इन करोगे तो वो
जूम आउट कर देगा। तो इस तरह से दिस इज जूम इन एंड देन दिस इज जूम आउट। ऑल्ट प्रेस करना, कंट्रोल प्रेस नहीं करना। कंट्रोल प्लस से जूम इन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ ओके ठीक है, इट्स वर्किंग, बट आई प्रीफर ऑल्ट और ये वाला मेथड, क्योंकि मुझे इसका फायदा ये है कि मैं जहाँ भी, अब मैंने सिर्फ इस एरिया को अगर जूम करना है ना, अगर मैंने सिर्फ इस एरिया को जूम करना है तो मैं यहीं पे कर्सर लेके आऊंगा एंड देन आई प्रेस ऑल्ट और जूम करूंगा तो मुझे ये एरिया जूम हो जाएगा। बट अगर मैं कंट्रोल प्लस यूज करता हूँ तो सेंटर से जूम करेगा और फिर मुझे उसे ग्रैब करना पड़ेगा यहाँ से, तो विच इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी। ऑलवेज यूज शॉर्टकट्स बेसिकली, हर चीज के शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वी हैव अ मैग्नीफाई टूल। मैग्नीफाई है ना ये, ओके डॉज टूल ठीक है। ब्लर टूल, यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लर्स हैं, हम इसको ब्लर कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो कोई ब्लर नहीं करने की चीज़, बट समटाइम्स यू हैव टू लाइक ब्लर पिक्चर्स, इनकी इमेज अगर हम करें ब्लर थोड़ी सी, तो ये बहुत थोड़ी सी ब्लर हो रही है। ब्लर के लिए यूजुअली थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ता है, हार्डनेस 0 हुई भी थी, क्या ही ब्लर होना था इसमें। तो ये देखो हल्का हल्का ब्लर हो रही है इनकी इमेज। अब दिस इज सिंपल काइंड ऑफ ब्लर, वी हैव गॉसियन ब्लर, वी हैव पिक्सल ब्लर, वी हैव अदर टाइप्स ऑफ ब्लर्स। आई थिंक उसके लिए तो एक अलग ही सेशन होना चाहिए। ओफ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, लास्ट वी हैव अ टेक्स्ट टूल। अगर हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, जस्ट ग्रैब समथिंग, बस मैं आई स्टार्ट राइटिंग। कलर इसने लिखा क्यों नहीं? ओके माय पीसी इज नॉट लाइकिंग इट। साथ साथ जूम भी चल रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है, थोड़ा सा आई थिंक हैंग हो गया। लेट्स वेट मोमेंट। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव लाइन टूल्स। ये कौन सा है? पाथ सिलेक्शन टूल, ये बहुत मतलब बहुत कम यूज होते हैं। देन वी हैव जूम टूल, इसको हम यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, क्लिक ऑन जूम। ऑल्ट प्रेस करोगे तो इट विल जूम आउट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस आ देगा। देन वैसे दिस इज फॉर जूम इन। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर जूम इन जूम आउट। टू कलर्स ऑफ टेक्स्ट, टू कलर्स ऑफ टेक्स्ट तो कहीं नहीं थे हमारे पास। यहाँ पे मेरी टेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं ऐड हो रही? हाँ अब आ रहा है ना। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। आई कैन जस्ट grab it here, let's say यहाँ पे आ जाता है। ओके मैंने उस जगह को उड़ा के यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना है। मैं इधर जाऊंगा, ब्रश टूल करूंगा, सॉरी। ठीक है, तो ये मेरे पास ज्यादा नजर आ जाएगा, तो आई कैन चेंज द डी में जाके आई कैन चेंज द टेक्स्ट का साइज, यहाँ से कम ज्यादा हो सकता है। आई कैन चेंज द फॉन्ट, यहाँ पे सैंपल लिखा आ रहा है साइड पे, आई जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर, देन आई कैन चेंज एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ से आई कैन चेंज द फॉन्ट कलर, इसके लेफ्ट लाइन राइट लाइन शार्प होगा नहीं होगा। यहाँ पे रेगुलर बोल्ड भी कभी कभी आ जाता है, लाइक रेगुलर इटैलिक्स, इटैलिक्स में करना है तो यू कैन चेंज हियर। लेट्स ऐड समथिंग एल्स। ठीक है, इसका हमने कलर करना है वाइट। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल, एंड देन इसका हमने
फॉन्ट करना है ये वाला तो ये ऑटोमेटिकली फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसको हमने साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसमें इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, बट दिस इज हाउ यू प्ले विद दिस। आई जस्ट मेंशनड इट। टेक्स्ट टूल पे जाओ, चूज योर लेयर जो बेसलाइन लेयर है एंड देन क्लिक एनीवेयर। क्लिक करके यू कैन जस्ट राइट योर टाइप टेक्स्ट और ये ऑटोमेटिकली एक नई लेयर बना देता है। तो मैंने अगर 4 दफा टेक्स्ट ऐड किया है तो उसने 4 लेयर्स उनकी बना दी। सो आई कैन जस्ट ग्रैब इट हियर, यहाँ पे लिख दिया एंड देन मेक श्योर कि जब भी टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हो यू हैव चोजन द टेक्स्ट वाला टाइप एंड देन उसमें यू कैन हाईलाइट इट और फॉन्ट छोटा कर दिया, फॉन्ट को चेंज कर दिया और शार्प, क्रिस्प, स्मूथ। फिर इसके फर्दर और फंक्शन है, इस पर डबल क्लिक करो, सॉरी इस पर डबल क्लिक करो तो एक पूरी एक विंडो आ जाती है ऊपर से, विच विल बी कवर्ड इन सेशन 3 आई गेस। एंड यस दैट्स इट फॉर द सेशन। अब एक दफा उसका इंटरफेस दिखा देते हैं, चलो उसका सिमिलर ही है जो सीसी है ना, फोटोशॉप सीसी। इसमें बस ये कि आपकी जो हिस्ट्री है पुराने हैं, अब ये मैंने इसी में बनाया था तो ये यहाँ पे आ जाते हैं थोड़े से ना। देन यू कैन जस्ट क्रिएट न्यू एंड ओपन अनदर फाइल। इसमें भी जाके यू कैन चेंज द प्रेफरेंसेस सिमिलर वे, कैमरा रॉ ओपन ऑन कर सकते हो एंड देन ऑल दीज थिंग्स। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे जाके फाइल हैंडलिंग में जाके यू हैव टू चूज द थर्ड ऑप्शन। तो ऑब्वियसली ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है, तो ये इतना इतना बड़ा मसला नहीं है। देन इसकी विंडोज भी सेम ही है, इनकी वर्क स्पेस, इनके फिल्टर्स, ये सारी चीज़ें सेम सेम है। इसका अगर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें तो वो जस्ट लुक लाइक दिस। थोड़ा सा मतलब सारी बात है, अलाइनमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी और उसकी डिफरेंट होती है, बट यू कैन सी थिंग्स आर प्रीटी सिमिलर हियर, प्रीटी सिमिलर हियर। या ये कौन सा टूल है, इरेजर टूल, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यहाँ पे। रिक्टेंगल टूल जो था वहाँ पे डिफरेंट था, ड्रैगिंग टूल डिफरेंट था थोड़ा सा, मतलब शेप में चेंज है लेकिन काम दोनों के सेम है तीनों के। where is my favorite spot healing tool? स्पॉट हीलिंग टूल कहाँ गया? चलो वो शायद आगे पीछे हो गया। तो स्पॉट हीलिंग टूल इनका वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू CS6 वालों का। देन यस दिस इज ऑल इट। अच्छा अब आते हैं कि जिप फाइल अनजिप नहीं हो रही लोगों की, क्या इशू था? कैन यू गाइस टेल मी एग्जैक्टली व्हाट वाज योर इशू? एंड अदर्स इफ यू हैव लाइक completed everything, you are following along the way, you have installed the software, you are free to leave. Thank you so much for joining. Rest of them who have issues, you can like stick to the end and we'll sort your problem out. And for M1 chip users, यार तुम लोग इतने महंगे लैपटॉप्स परचेज कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो एडोबी की, क्या जा रहा है तुम्हारा? अब उसके कोई क्रैक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सही है, and you guys can unmute yourself. So someone has asked, can we use Adobe Illustrator instead of Photoshop? Illustrator is only for photos. Photos को अगर आपने edit करना है, हमको थोड़ा सा modify करना है, photos you can like edit on Illustrator. नहीं एक मिनट, Illustrator and Lightroom. Illustrator, हाँ sorry my bad, I've confused both of these things. Illustrator is for poster making, vectors making में वो use होता है, but हम लोग इतने अभी like we are medical students, you all know, हम लोग इतने अभी एडवांस्ड क्या कहते हैं
ग्राफिक डिजाइनिंग स्टेज पे नहीं है कि विल नीड क्या कहते हैं उसे, Illustrator. But obviously, if you are aiming for, like, I know there are some high school students as well. If you are aiming for graphic designing, then Illustrator is a thing for you. But yeah, uh, how to bring any layer forward or backward? Just grab it. मतलब वहां से उठाओ ऊपर कर दो, वहां से उठाओ नीचे कर दो. Simple, easy. uh, देखो जुगाड़ है. Who is this person M1 के लिए? अच्छा, मैक M1 चिप वाले ना, तुम लोगों ने ईमेल किया ना, चलो मैं कुछ ढूंढूंगा और तुम्हें भेजूंगा. अगर कोई और भी M1 वाला है तो यू ईमेल मी, मतलब उसी जो लिंक, जो ईमेल तुम लोगों को भी आई थी उसी पे रिप्लाई कर दो, and I'll see if I could find something. I think I have something in mind, but I'm not sure if that is proper like official thing. There was some crack. Yes, Camera Raw is already attached with all versions of Photoshop CC and only with CS6. CS6 से पीछे जाने का फायदा ही नहीं है, वो तो रिडंडेंट हो गया. वो कहाँ है वो लोग जिनके मसले हो रहे थे? You can ask your question now. Yes, fonts and color palettes मतलब हो गए हैं, but more on the upcoming sessions. Okay, I have downloaded the CC file, but after setup installation, I'm unable to find the installed Photoshop. तो मतलब Photoshop के इसमें गए होंगे obviously, इसको unzip करके obviously, and then setup करके setup run किया, then you go to the crack file and you apply the patch. तो इसमें there is an instruction file. It says install app from setup.exe, which is अभी folder के अंदर. And then if you have issues, you might need to install home screen fix. अच्छा, ये glitches थे जो लोग बता रहे थे कि if you have the screen glitches, so you can apply the screen fix patch from fix folder. Let's see. Okay, you don't need a crack basically. Just इसको setup को run करो, setup.exe, and then it should work. And if you want होम स्क्रीन ग्लिचेस, तो इसको आई थिंक ये एप्लीकेशन टाइप है ना, ये जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस तो वो ग्लिचेस को फिक्स कर देगा. um, अच्छा हाँ ठीक है. विनरॉल की जरूरत नहीं है, इट्स अ डॉट जिप फाइल. तो इसमें जाओ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ. ये इस तरह से डाउनलोड होगी ना, तो राइट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे सिंपल फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑल. यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट करो. यू डोंट नीड अ विनरॉल. अगर ओपन विद में यहाँ पे आ रहा है, अगर मतलब विनरॉर, तो देयर इज अनदर ऑप्शन यहीं पे ही, विंडोज एक्सप्लोरर. तो यहाँ इसमें विनरॉर की जरूरत ही नहीं, हर चीज इस तरह से अवेलेबल है. ठीक है. एक्सट्रैक्ट करने में जिनको मसला हो रहा था, इसमें क्या है मतलब, यहाँ पे जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑल, ये पूछेगा कि कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, एंड यू जस्ट प्रेस एक्सट्रैक्ट. थोड़ी सी देर लेगा और ये एक्सट्रैक्ट कर देगा. हाँ वो भी सीसी वाला उनका भी रहता था थोड़ा सा. चलो ये एक्सट्रैक्ट हो जाए पूरा, फिर मैं अभी बताता हूँ. मतलब जिप फोल्डर में तो कुछ भी नहीं चलता ना, आप जस्ट यू कैन ओनली रीड थिंग्स, यू कांट अप्लाई थिंग्स बेसिकली. तो वो हमें अनजिप तो हमेशा करना ही पड़ेगा. मैक इंटेल, आई एम गेटिंग एन एरर दैट इज इंस्टॉलेशन इज फेल्ड. यार ये बहुत पुराना है मेरे पास, आई एम नॉट श्योर कि ये मैक इंटेल को भी सपोर्ट करता है या नहीं. व्हाई डोंट यू गो टू लाइक website. Only those people who are a bit tech savvy can download it directly from here. Get into pc.com. But सब यहाँ से ना करें, जो सिर्फ थोड़े टेक सेवी जिन्हें पता है कि कहाँ से क्या इंस्टॉल करना है. They can download it from here as well. No, not everyone in meeting room. ठीक है. अच्छा, we have it here.
लेट्स अज्यूम हमने setup.exe रन कर लिया है पूरा, then we'll go to crack and creative cloud app patch. अब इसमें लिखा हुआ है कि copy this file to जहाँ पे आपने Adobe सेव किया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है C program file 86, ये थोड़ा सा मिसगाइडिंग हो सकता है क्योंकि ये 86 नहीं होगा, ऑब्वियसली दिस इज 64 बिट, तो खाली सी प्रोग्राम फाइल में जाना है। ये थोड़ा सा आई थिंक गाइड जिसने भी बनाई है सही नहीं बनाई, तो you just copy this thing, राइट क्लिक करके प्रेस ऑन कॉपी, गो टू योर सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, प्रोग्राम फाइल्स ये और प्रोग्राम फाइल्स 86। आई थिंक एक 86 वाले ने भी ईमेल की थी, तो वो 86 में नहीं जाना, बेसिकली प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। यहाँ पे यू विल फाइंड एडोबी, देन एडोबी में यू विल फाइंड जो भी एडोबी का आपने इंस्टॉल किए हैं। तो आई हैव these, तो ये फोटोशॉप 2020, यहाँ जाऊँगा एंड देन आई जस्ट paste it here, paste करूंगा, it will ask me for permission. I think ये dialog box आपको नजर नहीं आ रहा होगा, but I have a dialog box here which is asking for permission. So I'll press continue on that और ये copy कर देगा. That's how you copy your thing. What else? Mac1 का मैंने बताया ना कि I'll find something for Mac1, don't worry. कोई और चीज, CS6 का भी काफी सिंपल है, वो गो थ्रू करवाना है, रन थ्रू। pretty similar. CS6 में जाके मतलब आफ्टर यू हैव अनजिप्ड इट, पहले अनजिप लाजमी करना है। क्रैक वाले 64 बिट यूज करते हैं हम, इसको कॉपी करो एंड देन गो टू योर सी, अगेन प्रोग्राम फाइल्स, नॉट प्रोग्राम फाइल 86, गो टू एडोबी, एडोबी का CS6 का फोल्डर एंड देन जस्ट पेस्ट इट हियर।